और सीधे अपने दर्शकों को तमिलनाडु लिए चलते हैं, जहां थलापति विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। I request the Honorable Governor's permission to commence the function. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Chief Minister. திரு சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள். நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் பிள்ளதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். என் ஆனந்த் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்கொள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள். நான் ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒரு தலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. தமிழ் வாழ்க.
டாக்டர் KG அருண்ராஜ் அவர்கள். நான் KG அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும். तो तमिलनाडु में मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। इससे पहले थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हजारों की संख्या में यहां लोग उमड़े हुए हैं। और जब एक अभिनेता के फैंस नेता के रूप में कार्यकर्ता में बदल जाते हैं तो वही करिश्मा होता है जो तमिलनाडु की राजनीति में हुआ है। टीवी के 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, बहुत सियासी उठापटक देखी थलापति विजय ने और आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिल्कुल, देखिए रंजना, आखिरकार जिस दिन का इंतजार था तमिलनाडु के लोगों को और खुद टीवी के को, वो दिन आखिरकार आज रविवार साबित हुआ है और थलपति विजय ने जो है शपथ ले ली है और उनके साथ जो है 9 मंत्री इस वक्त शपथ ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम अपने आप में ये बता रहा है कि किसी भी एक तरीके से गैर राजनीतिक व्यक्ति की जब राजनीति में एंट्री होती है तो उसके बाद की जो परिस्थितियां बनती हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और अब उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, अब मुझे लगता है रंजना कि इस वक्त जो है तमिलनाडु की जनता ने अपने पारंपरिक दलों के अतिरिक्त जो एक नए दल को मौका दिया है, वह बड़ी उम्मीदों के साथ मौका दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद उनकी ये है कि थलपति को उन्होंने जिन उम्मीदों के साथ अपना वोट दिया है, थलपति को जिस उम्मीद के साथ उन्होंने चुना है, अब वो उन उम्मीदों को पूरा करें। सवाल एक ये भी है कि 108 विधायक उनके पास मौजूद हैं और तकरीबन 5 से 6 दलों का समर्थन मौजूद है और अब उनके पास नंबर्स की भी कमी नहीं है। आने वाले दिनों में जब बहुमत साबित करना होगा तो वो बहुमत भी साबित कर लेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाना, सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाना, इसके अलावा राज्य के विकास को आगे बढ़ाना, केंद्र के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण बात रहेगी क्योंकि और उसमें उनकी असली लीडरशिप की पहचान होगी। अगर आज तक आपने कभी उनकी मूवी देखी हो तो उनकी मूवी में वो जिस तरीके से एक एक्टर के तौर पर सामने आए हैं, उसने तो पहले पर्दे पर उनके हजारों लाखों दर्शक चाहने वाले पैदा किए हैं और आज उसी का नतीजा है कि वो उसके बदौलत और अपनी जो उनका घोषणा पत्र था, जो उनकी बातें थी, उसकी बदौलत वो आज मुख्यमंत्री तो बनाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती है कि पहले पर्दे पर जो बात कही जाती है, क्या वास्तव में उसे जमीन पर उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है, ये एक अपने आप में बड़ी बात साबित होने वाली है क्योंकि वो रुपहले पर्दे से यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि तमिलनाडु के इतिहास में इससे पहले हमने देखा है कि जब MGR मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी वो एक तरीके से अभिनेता थे और उसके बाद वो यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने लोगों का दिल जीता और एक अच्छी सरकार चलाई, एक लोकप्रिय सरकार चलाई और उसके बाद MGR का नाम जो है वो तमिलनाडु की राजनीति में आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है और लोग उनको याद करते हैं। लेकिन अब थलपति विजय के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो साबित करें कि तमिलनाडु की जनता ने जो उनको अपना मैंडेट दिया है, वो मैंडेट अब वो किस तरीके से आगे लेकर उसको जाते हैं। जी बिल्कुल। ललित, देखिए यहाँ पर कई सारी चुनौतियां हैं। एक तो नई पार्टी है, पहली बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं विजय। अब सभी दलों को साथ में रखना, क्योंकि नंबर गेम नहीं है और सभी दलों को साथ में रखना ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है उन लोगों के लिए भी जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जबकि थलापति विजय तो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बताया मैंने कि एक चुनौती जो है वो कई फ्रंट पर है, केवल एक फ्रंट पर नहीं है चुनौती
कि उनको सरकार के लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना है। अभी तो सबसे पहले सभी जितने भी सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को पूरा करना, उसके बाद मंत्रिमंडल का आवंटन करना और उसके बाद उन मंत्रियों के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक अच्छी सरकार चलाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती वाला काम है उनके लिए। और हालांकि तमिलनाडु की जनता ने उनको मैंडेट तो दिया, लेकिन वो जिस स्थिति में इस वक्त खड़े हैं वो जानते हैं कि अगर कोई भी एक सहयोगी दल जो है कम हुआ तो उसके बाद उनके पास नंबर गेम का क्राइसिस हो सकता है, और हो सकता है कि अगर एक ने अपने पैर पीछे खींचे तो आने वाले समय में दूसरा भी खींचे। लेकिन अब एक तो इस सरकार के जो है सरकार किस तरीके से परफॉर्म करती है, सरकार कितना कामकाज आगे बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है, यहाँ पर जो है अब थलपति विजय की एक सबसे बड़ी पहचान होने वाली है। और आखिरकार वो किस तरीके, इससे पहले हमने देखा है कि इससे ज्यादा भी सहयोगी दलों के साथ कभी सरकार चलाई जा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में इससे ज्यादा सहयोगी दलों के साथ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ जो है सरकार चलाई थी। और उनको जो है उससे पहले अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा सहयोगियों के साथ सरकार चलाने का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिलता नहीं है हमारे देश की राजनीति में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है ये साबित करके बताया था कि इतने सहयोगियों के साथ भी सरकार चलाई जा सकती है। तो अब थलपति विजय जो कि वो पहले पर्दे से राजनीति के मैदान में आए हैं, तो अब वो किस तरीके से सामंजस्य साधते हैं, किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र दिया है उस घोषणा पत्र को भी पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती है, जिसमें कि अलग अलग उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो आने वाले समय में वो उन सारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अब वो कैसे वो सामंजस्य बना करके आगे करेंगे। अभी फिलहाल आज उनके साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका कैबिनेट एक्सटेंशन भी होगा, आने वाले दिनों में उनको बहुमत भी साबित करना होगा विधानसभा में, और उसके बाद जब वो सरकार आगे काम करना शुरू करेगी तो फिर ये देखना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 5 राज्यों के नतीजों में अगर बंगाल में एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा परिवर्तन मैं अगर कहूं तो तमिलनाडु में भी हुआ है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से लोगों ने एक रुपहले पर्दे के किरदार को इतना बड़ा मौका दिया है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये एक तरीके से कहा जाए तो जो ये दशक चल रहा है, इस दशक में अपने आप में इस तरह का मौका मिलना एक बड़ी बात है, और अब किस तरीके से विजय उसको आगे लेकर चलते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसीलिए शायद राजनीति को संभावनाओं का क्षेत्र कहा जाता है ललित। अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, तो सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या तय किया गया है? देखिए, अभी तक तो जितने भी सहयोगी दल हैं उन सभी ने जो है अपना समर्थन देने की बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले कुछ दिन जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा में बहुमत साबित करने से लेकर के सभी लोगों को एकोमोडेट करना कैबिनेट में और सभी की इच्छाओं के अनुरूप आगे बढ़ना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने। और साथ ही जो एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से अलग कांग्रेस उनके साथ आई है, आज खुद राहुल गांधी जो है वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं, तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि खुद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा काफी सारे जो साउथ के जो एक्ट्रेस हैं वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब सबसे बड़ी आज जो चर्चा है वो यही है कि थलपति विजय किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से तमिलनाडु के विकास की गाड़ी को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये कोई आसान काम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अनुसार अपने काम करना, एक केंद्र के साथ अच्छे सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना, जबकि आपके साथ कांग्रेस पार्टी सहयोगी हो, तो ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से चीजें आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा टच होने जा रहा है आज शपथ ग्रहण के बाद। जी बिल्कुल, देखिए ललित, तमिलनाडु की राजनीति जो है वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के आधार पर आगे चलती है, लेकिन फिर भी वहां भी मुद्दे वही रोजगार, भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं।
बिल्कुल। और देखिए, ये मुद्दे तो दरअसल देखिए, वो कहते हैं ना कि विकास तो एक लगा हुआ क्रम है, वो कभी खत्म नहीं होता है। वो उसकी अपनी अपनी जो है वो विकास लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी राज्य में सड़कें पूरी बन जाती हैं, क्योंकि ये सब चीजें चलती रहती है। स्कूल बेहतर हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाती हैं, हर जगह विकास की संभावना होती है। अगर अस्पताल किसी राज्य में अच्छे बन चुके हैं तो वहां आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजीज की मशीनें होती हैं। इसके अलावा अपने इलाज को और बेहतर करने की चीजें हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने जो कहा है, तमिलनाडु की राजनीति में एक सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप सरकारों पर बहुत लगते हैं। अब एक इस आरोप को ये आरोप एक ऐसा है जिसमें कि अक्सर सरकारें वहां पर बदली हैं। अब वो भले ही जयललिता की सरकार रही हो या उनकी पार्टी जयललिता की सरकार रही हो, या फिर इसके बाद डीएमके प्रमुख की सरकार रही हो, स्टालिन की सरकार रही हो, तो आए समय में वहां पर जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे लगे रहते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रंजना ये भी है कि वहां पर जो उन्होंने वादे किए हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो महिलाओं को, जो महिला मुखिया हैं परिवार में, उनको 2500 रुपए की मासिक सहायता देंगी। इसके अलावा हर साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है उन्होंने। यानी कि आप ये मानकर चलिए, अगर हर गरीब महिलाएं जो हैं, गरीब परिवारों की जो दुल्हनें हैं, उनको 8 ग्राम सोना देने की बात कही है। तो चुनौती आप देख रही है किस बड़े लेवल पर है उनके सामने। महिला सुरक्षा से लेकर महिलाओं का विकास, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये 5 लाख नौकरी देने की बात हो, स्नातकों को 4000 रुपए, बेरोजगारों को और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए देने की बात हो, तो इन सब घोषणा पत्र की बातों के लिए फंड अरेंजमेंट करना, इसके अलावा राज्य को आगे लेकर जाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और अब किस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ती हैं, इस पर जो है सबकी नजर बनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह आज हो गया है और आने वाले दिनों में इनको बहुमत साबित करना होगा, उसके बाद कैबिनेट एक्सटेंशन भी होगा। लेकिन अब चुनौती जो है आज से शुरू होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो थलापति विजय ने शपथ ले ली है, राजनीति के नायक कह सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में जिस तरह से करिश्मा हुआ है, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन असली चुनौती अब से शुरू होने वाली है। खबरें